Hello everyone. Today we are going to start with a very important and interesting topic, that is nutrition in human beings. Right? Now, nutrition in human beings, we have a very long alimentary canal in our body. Right? It is one single tube-like structure opening from the mouth till the anus. It is one continuously running long tube. Nutrition or digestion in human beings takes place in 5 steps. What are these 5 steps? Ingestion. Ingestion means taking in of food, and that food we take in through the mouth. Right? That is known as ingestion. The second step is digestion, which takes place in our stomach and intestines. That is small intestine, large intestine. Then comes the third part, that is absorption. Then how the food is absorbed by the body, and then assimilation, that is how it is assimilated. Assimilated means how it is utilized in our body for various purposes. Then last step is egestion, that is after the food is absorbed, the waste material which is left, which is not absorbed by the body, that is ejected out of the body through anus. So one by one we are going to study about these steps. Nutrition, as we have already read, means taking in of the food and absorbing how it is absorbed by our body. We take in solid food. That solid food is in the complex form. So it has to be broken down into simpler food material. Because our body is not able to absorb the food in its complex form. तो उस complex form में जो food होता है, then it is broken down into very simple form, ताकि वो easily absorb हो जाए हमारी body में. तो कैसे होता है, that we will study now. First of all, the food as it goes into the mouth, that is ingestion. The first step, ingestion. हमारे mouth के अंदर there are teeth, right, जो food को chew करने में help करते हैं ताकि वो थोड़ा soft हो जाए. अब वो soft कैसे होगा? पहले तो दांतों से वो कटेगा, right? And then we have 3 pairs of salivary glands in our mouth. 3 pairs, one on this side, one on this side, and one on the back side. Right? So 6 salivary glands we have. And they produce saliva. Saliva keeps our mouth wet. Our mouth remains wet all the time. When you see something very delicious, the mouth starts watering. What is that water? That is actually the saliva which is present in our mouth. And this saliva, it plays a very important role because it secretes an enzyme called amylase. आपको मैंने बताया था हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन होता है वो होता है किसकी हेल्प से? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. Biological catalyst, and these catalysts are the enzymes. जो हमारी बॉडी में enzymes present होते हैं वो हेल्प करते हैं खाने को एब्जॉर्ब करने में, राइट? तो इसी तरह से जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में, उसमें एक एंजाइम होता है. वो एंजाइम जब रिलीज होता है, that enzyme is known as amylase. Now, to study the function of amylase, we'll first see this experiment.
ट्यूब लेंगे, दोनों में हम क्या डाल देंगे, स्टार्च सॉल्यूशन, राइट। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में हम स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद हम सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब, लेट इट बी इन टेस्ट ट्यूब ए, वी विल पुट सम सलाइवा, उसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे। उसके बाद आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है, जब हम उसमें आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है। तो इसमें भी हम आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने के बाद हम देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में तो कलर ब्लू ब्लैक हुआ और दूसरे में नहीं हुआ। तो किसमें ब्लू ब्लैक होगा, टेस्ट ट्यूब बी में, जिसमें हमने सलाइवा ऐड नहीं किया था, उसमें खाली स्टार्च सॉल्यूशन था, तो उसमें कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जिसमें हमने सलाइवा ऐड किया था उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। तो वो क्या शो करता है कि इसमें स्टार्च जो है वो चेंज हो चुका है, स्टार्च की प्रॉपर्टीज इसमें नहीं रही, तभी तो जब हमने आयोडीन ऐड किया तो वो कलर चेंज नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे उसमें एक्चुअली होता क्या है। जब हम खाना माउथ में हमारे जैसे ही जाता है तो खाना हम च्यू करते हैं, च्यू करके वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सलाइवा जो है वो भी उसको सॉफ्ट करने में और वेट करने में हेल्प करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं अमाइलेज। दिस अमाइलेज it helps to break down the carbohydrates which are present in our food. अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में। हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, प्रोटीन्स भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं। तो मेनली हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, जो डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में एज सच एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन इन तीनों को, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है हमारी बॉडी को, राइट। तो जो ये स्टार्च, जो अमाइलेज रिलीज होता है सलाइवा से, वो क्या ब्रेक करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको ब्रेक कर देता है सिंपल शुगर माल्टोस में, ठीक है। तो स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ शुगर फॉर्म, दैट इज माल्टोस। शुगर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, माल्टोस होता है, ग्लूकोज होता है, और भी होते हैं। तो इसको, ये जो कन्वर्ट होता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए यहां पर भी जब हमने इसमें सलाइवा ऐड किया तो स्टार्च जो है उसकी प्रॉपर्टीज खत्म होकर वो शुगर की प्रॉपर्टीज बन गई, इसीलिए आयोडीन उस पर कोई भी उसका कलर चेंज का असर नहीं हुआ, राइट। सो अमाइलेज हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोज। सो सबसे पहला ब्रेक डाउन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है, मतलब डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए, ठीक है। च्यू करके खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, वेट हो जाता है, ताकि वो इजीली आगे पास हो सके। इस वेट फूड को हम बोलस बोलते हैं, राइट। आफ्टर दैट दिस बोलस इट विल पास इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोला जाता है, ईसोफेगस। दिस इज नोन एज ईसोफेगस। ये सिर्फ एक पैसेज है फ्रॉम द, सो दैट द फूड कैन पास फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बट इस फूड पाइप में फूड ऐसे ही इजीली पास नहीं हो जाता है। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता रहता है इस फूड पाइप में। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस। तो ये जो फूड पाइप है ये इस तरह से होता है, राइट। रेगुलर इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है।
तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने की वजह से फूड नीचे पुश होता रहता है, राइट? इट एक्सपैंड्स, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द फूड इज पुश्ड डाउन। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। यहां पर कोई भी तरह का डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो माउथ से स्टमक में आ जाता है। जब फूड स्टमक में आता है तो यहां पर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। वो गैस्ट्रिक जूसेस कहां से रिलीज होते हैं? ये स्टमक की वॉल, स्टमक जो है वो एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट, ऑन अ लिटिल लेफ्ट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन। बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही फूड स्टमक में आता है ये एक्सपैंड करता है ताकि फूड अंदर आ सके, राइट? ये एक्सपैंड हो जाता है और इसकी वॉल्स में, स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो कौन कौन से रिलीज होते हैं इसमें? नंबर 1 HCl, 3 तरह के होते हैं। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस, राइट? HCl का क्या काम है? HCl इट इज एन एसिड, सो इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है? क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो HCl इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम सो दैट पेप्सिन कैन वर्क। और दूसरा फंक्शन HCl का क्या होता है? बिकॉज एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो इट किल्स ऑल द माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट हमारे बॉडी के अंदर। along with the food some bacteria can also enter, right? They keep entering from our mouth, so it kills all the bacteria also. So दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है HCl के, ये आपको सब याद करने हैं फंक्शन अच्छे से। पहला फंक्शन है to create an acidic medium for pepsin to work, and secondly it kills all the microbes, right? Then pepsin it works in acidic medium to break down the proteins. pepsin किस पे काम करेगा? प्रोटीन्स में। माउथ में किस पर काम हुआ था? खाली कार्बोहाइड्रेट्स पर, राइट? जब खाना स्टमक में आएगा तो पेप्सिन इट विल वर्क ऑन प्रोटीन्स एंड ब्रेक डाउन इनटू पेप्टोन्स। इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स into peptones. That is a simpler form of proteins. Ultimately it has to break down into amino acids. प्रोटीन का सबसे जो absorbable form है that is amino acid. लेकिन यहां पर अभी पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। इसी तरह से माउथ में भी स्टार्च का जो है वो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था इनटू माल्टोज। अल्टीमेटली इट हैज टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। द फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय आवर बॉडी। इधर भी पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। सो पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। लास्ट इज म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है? ये हमारे स्टमक पर एक थिक लाइनिंग बना लेता है, क्योंकि HCl है, एसिड है, यू नो एसिड इट कैन बर्न द स्किन। तो ये स्टमक के अंदर एक लेयर बना लेता है पूरा, ताकि HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो स्किन के टच में ना आए, राइट? अदरवाइज इट कैन कॉज अल्सर्स। वो जहां जहां से म्यूकस की लेयर हट जाएगी वहां से वो थोड़ा सा वहां पर वूंड्स हो जाएंगे, राइट? सो
दैट इज वाई म्यूकस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपने सुना होगा लोग कंप्लेन करते हैं हमें एसिडिटी हो रही है. वो एसिडिटी क्या होती है? जब ये HCl का अमाउंट बढ़ जाता है हमारे स्टमक में, सो इट पंप्स अप, ट्राइज टू कम अप थ्रू द फूड पाइप, तो उसको बोलते हैं कि वो एसिडिटी हो रही है. अदरवाइज HCl, pepsin and mucus, they are very important and they help to digest the food. अब इसके बाद जब यहाँ पर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो गया, अब क्या है? फूड आएगा नेक्स्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसे फूड आएगा? स्टमक से फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा स्फिंक्टर मसल्स का. वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? स्फिंक्टर, SPHINCTER. स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं और फूड को पुश कर देती हैं स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है. इट इज नॉट इन द स्टमक. स्टमक में खाली प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं. अल्टीमेटली जो पूरा खाना डाइजेस्ट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल्दो द नेम इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट इज वेरी वेरी लॉन्ग, अप टू फ्रॉम 6 meters अप टू 9 meters, राइट? बहुत लॉन्ग होती है, लेकिन बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे स्टमक में रहती है. बिल्कुल कॉइल स्ट्रक्चर होता है. इस तरह से बिल्कुल कॉइल स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट होकर, जैसे आप एक किसी पाइप को बिल्कुल लपेट दो तो वो कितना छोटा हो जाता है. कितना भी बड़ा पाइप हो उसको आप गोल 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 करके अगर लपेटोगे तो वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, थोड़ी सी जगह में पूरा आ जाएगा. इसी तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल कॉइल्ड होती है, राइट? कॉइल्ड फॉर्म में हमारे इसमें स्टमक के नीचे एब्डोमेन रीजन में होती है, राइट? लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं? उसका विड्थ बड़ी होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्दो द लेंथ इज लेस, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आएगा थ्रू द स्फिंक्टर मसल्स फ्रॉम द स्टमक, तो उसमें क्या होगा? लिवर, which is the largest gland present in our body. So please mark it. Liver is the largest gland present in our body. Liver और ये पैनक्रियास जो बिल्कुल स्टमक के नीचे होते हैं, ये दोनों काम करना शुरू करेंगे जैसे ही खाना इसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. लिवर में गॉल ब्लैडर होता है. गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस बनता है, right? Remember, liver will secrete bile juice and pancreas, they will secrete pancreatic juice. अब इन दोनों के हम फंक्शन करेंगे कि किस तरह से ये ब्रेक डाउन करेंगे फूड को. बाइल जूस, अब क्या बचा हुआ है हमारे पास? फैट्स बच गए हैं जिनका अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है. तो बाइल जूस, it will come through the bile duct, right? This is gallbladder. Here, this is gallbladder. और इसके नीचे ये है bile duct, right? Bile duct. Bile duct से food जो है वो bile duct से bile juice जो है वो small intestine में आएगा. And it will work, this bile juice will work on the fat, right? And it will, this fat, it is present in the form of large globules, large fat globules. It will break it down into small fat globules and it will emulsify the fat. बिल्कुल उसको emulsify कर देगा, राइट? ये बाइल जूस का फंक्शन है. इट विल इमल्सिफाई द फैट. ये एक फंक्शन हुआ. दूसरा इसका फंक्शन है टू क्रिएट एन एल्कलाइन मीडियम. अब हमने स्टमक में देखा था कि HCl इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम.
तो जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है स्टमक से, वो क्या है? एसिडिक है, राइट। अब जो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा, वो काम नहीं कर सकता एसिडिक मीडियम में, वो काम करेगा एल्कलाइन मीडियम में। तो ये जो बाइल जूस है, ये क्या करेगा? एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा ताकि पैनक्रियाटिक जूस काम कर सके। तो खाना जो है एसिडिक मीडियम से एल्कलाइन मीडियम में आ जाता है। तो बाइल जूस के दो फंक्शन हुए, टू इमल्सिफाई फैट, टू ब्रेक इट डाउन, break down the large fat globules into smaller fat globules, and it also creates an alkaline medium so that the pancreatic juices can work. Now pancreatic juices, let's come to pancreatic juices. Pancreatic juices, they are secreted by this leaf like structure. ये एक leaf like structure होता है जो बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, इसको पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास दे विल सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाटिक जूसेस 3 तरह के होते हैं, दैट इज ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, राइट। 3 तरह के पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। तो फर्स्ट जो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस पे काम करते हैं? प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स जो ब्रेक डाउन हुए थे स्टमक में, दे वर इन द फॉर्म ऑफ पेप्टोन्स। अब वो पेप्टोन्स जो हैं, दे ब्रेक डाउन, द ट्रिप्सिन एंजाइम विल एक्ट ऑन इट। पैनक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेज। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स पे वर्क करेगा और फाइनली इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू अमीनो एसिड्स विच इज एन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। और लाइपेस जो है वो फैट्स के ऊपर काम करेगा and it will break it down into fatty acids and glycerol. Right, fatty acids and glycerol. And pancreatic amylase जो माउथ में सलाइवा ने अमाइलेस ने सलाइवरी अमाइलेस ने ब्रेक डाउन किया था स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, दैट इज माल्टोज, उसको उसके ऊपर काम करेगा एंड इट विल ब्रेक डाउन दैट शुगर फाइनली इनटू ग्लूकोज। सो दीज आर अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल and glucose. These are the end products of digestion. These are the end products. ये एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, what are the end products of digestion? So the end products are amino acids, that is proteins, they break down finally into amino acids. Fats, they break down into fatty acids and glycerol, and sugar, it breaks down into glucose. राइट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल्स में से एक और जूस सिक्रीट होता है जो कि कहलाता है इंटेस्टाइनल जूस। वो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस ये फाइनली ये सब चीजों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में और ग्लूकोज में। दिस इज द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल्स में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट ऐसे आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी वॉल्स में दोनों तरफ ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं।
इनको बोलते हैं विलाई। विली भी बोलते हैं, विलाई भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनका क्या काम होता है, ये इस तरह से दोनों, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बीच में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लो, इसके दोनों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो ये जो है दे कीप ऑन डूइंग लैशिंग मूवमेंट, इस तरह से, राइट, इस तरह से लैशिंग मूवमेंट करते हैं। और ये लैशिंग मूवमेंट करते हुए क्या करते हैं, जैसे आप कर्ड को चर्न करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चर्न करते हैं, इसी तरह से ये इस तरह से चलते हुए फूड को बिल्कुल फाइनली चर्न करते हैं, फाइन चर्न कर देते हैं उसको। और इसी तरह से ये थोड़ा सा सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएंगे, आप कहोगे यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का तो ये रास्ता रोक रहे हैं, दोनों तरफ है, बट क्या होता है जब ये लैशिंग मूवमेंट करते हैं, आप इधर मेरी फिंगर्स की तरफ देखोगे, अगर ये मान लो बीच में पैसेज है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये इस तरह से चर्न करते हैं। एक तरफ इधर गया तो देखो कितना सारा एरिया बढ़ गया, फिर ये इधर गया तो भी कितना सारा सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ये इस तरह से मूवमेंट होता रहता है। उससे क्या है, सरफेस एरिया बढ़ता है और खाना आगे आगे पुश होता रहता है, राइट। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस तरह से, ये जो विलाई है, इनके बिल्कुल नीचे यहां पर वॉल पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एक्सेट्रा, ये ब्लड वेसल्स होते हैं। तो यहां से जो भी खाना, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, तो वो खाना जो है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। वहां से ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके, blood is circulating throughout our body, so it takes the food to all the parts of the body, जो cells होते हैं हमारे बॉडी में, वहां पर ले जाता है खाने को, ठीक। तो इस तरह से खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमने इंजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया कि खाना कैसे एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद एसिमिलेशन, देन दैट फूड इज utilized in our body for various metabolic activities। लेकिन उसके बाद लास्ट हमारा है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता वो फिर सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, द वेस्ट इट कम्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही विलाए होते हैं, जो कि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट, खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द फूड विच इज वेस्ट, दैट इज इजेक्टेड आउट थ्रू एनस, एंड दिस इज ऑल्सो इजेक्टेड आउट विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। यहां पर भी स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है, जो खाने के इजेक्शन में, दैट इज थ्रोइंग इट आउट फ्रॉम द बॉडी, इट हेल्प्स इन दैट, right? So this is how the digestion takes place. One thing more I want to tell you, ये जो small intestine है, मैंने आपको बताया इसकी लेंथ काफी होती है, it depends from organism to organism. Like in herbivores, this small intestine is a little longer. Why? Because herbivores, they have to digest the cellulose. Herbivores क्या खाते हैं? Plants. Plants में क्या होता है? Cellulose होता है, राइट, द सेल वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना, हमारी बॉडी में तो कोई एंजाइम है ही नहीं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, और प्लांट, वो तो खाली प्लांट्स खाते रहते हैं, तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू मीट। इसलिए जो कार्निवोर्स होते हैं उनका इंटेस्टाइन, लाइक हमारी बॉडी का इंटेस्टाइन, या और ऑर्गेनिजम्स जो और एनिमल्स हैं जो कार्निवोर्स हैं, उनका इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली छोटा होता है, और हर्बीवोर्स जो खाली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका इंटेस्टाइन थोड़ा लॉन्गर होता है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। सो टू डाइजेस्ट दैट दे हैव अ लॉन्गर intestine, right? I hope this whole digestive system is clear to you now, and I hope you found it interesting also, right? So
Now in the next video, we'll take up the next system of the human body, that is respiration. Till then, keep enjoying, be safe at home, stay at home only and be safe. Right? Meet you in the next video then. Thank you.